Good morning, students. I welcome you all in the part of the second chapter. Earlier, we studied about the first chapter, which was nutrition in plants. In that, we studied about different modes of nutrition, that is autotrophic, heterotrophic, and we studied about autotrophic in detail. हमने पढ़ा कि कैसे plants photosynthesis करके अपना food produce करते हैं, prepare करते हैं. Now we will go on to the second chapter, which is nutrition in animal. Basically, whatever we take, whatever we eat, or any other food item which we are taken by us is not directly consumed by the body. It is first broken down into simpler parts. जो भी हम खाते हैं डायरेक्टली बॉडी उसे यूज नहीं करती, उसे पहले छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है और उस कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड बनाया जाता है, दैट इज सिंपलर फूड बनाया जाता है और तब हमारी बॉडी उसे कंज्यूम करती है. सो द प्रोसेस of basically converting complex substances into simpler ones are known as digestion. Okay, so you can remember this. What is digestion? The conversion of complex substances into simpler substances. Clear? So this is digestion. Like carbohydrate, if we'll take example, carbohydrate जो है ये break down होके sugar बनाता है, ग्लूकोज देता है, और वो ग्लूकोज सिंपल फूड है जिससे, या सिंपल सब्सटेंस है जिसे हमारी बॉडी यूज कर पाती है. सो वॉट एवर यू ईट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट लाइक राइस और व्हीट इज फर्स्ट broken down or digested, and then it gives out glucose which is in turn absorbed by the body. Okay, second thing comes different ways of taking food. What are the different ways? Like we chew, there are several ways in which we can take food, like scrapping or chewing or chiffoning, capturing, etc. If we'll talk about, first is scrapping. Scrapping is basically the mode of nutrition in which insect pears the food item and then suck the internal fluid of the food. इसमें क्या करते हैं एनिमल्स, जो भी इंसेक्ट है उसे पेयर्स करते हैं, उसमें छेद करते हैं और अंदर के इंटरनल फ्लूइड को सक कर लेते हैं. इस तरह के एनिमल्स जैसे मॉस्किटो या आप लाइस, ये सारे जो हैं स्क्रैपिंग करते हैं. ओके, पेयर्स करते हैं एंड देन सक कर लेते हैं अंदर के फूड मटेरियल को. देन कम्स चूइंग. चूइंग आपको पता है, चबा के जब हम बॉडी को फूड को बॉडी के अंदर डालते हैं, दैट देन प्रोसेस इज नोन एज chewing. Third is chiffoning. Chiffoning is a mode of nutrition in which animals suck the food from the substratum. जब एनिमल जो है सबस्ट्राटम पे लगे हुए फूड को सक करता है, सबस्ट्राटम मतलब सरफेस पे लगे हुए फूड को जब सक करता है तो उसे कहते हैं शिफोनिंग. शिफोनिंग जो है माउथ का स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू फूड को सक किया जाता है. जैसे कि बटरफ्लाइज जो नेक्टर सक करते हैं वो भी शिफोनिंग के अंदर आता है. थर्ड इज कैप्चरिंग. ठीक है, कैप्चर करके लाइक पिचर प्लांट एंड ऑल दोज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैप्चरिंग. वो कैप्चर करते हैं फिर फूड को खाते हैं. देन कम्स swallowing, like your snails, or not snails, like snakes, they swallow the food. Then comes sponging. Sponging is basically the when insects secrete saliva over the food and dissolved food is drawn up into the mouth. जब कोई जानवर सलाइवा को खाने के ऊपर छोड़ता है और जब वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है तब उसे ले लेता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्जिंग. ओके, और सकिंग मतलब डायरेक्टली सक करना, अंदर के खाने को बाहर निकाल लेना. सो दीज आर ऑल द मेथड ऑफ or modes of taking food in the body. So these you have to just know the names. These are not very in detail. When you'll go in higher classes, you'll read these things in detail. Okay, आप ये activity कर सकते हो. There is the table given. In this different modes of feeding you have to write. Try this. If you're not able to do it, I will give you the answers. Fine. Then moving next is digestion in humans. Also, amazing fact you can see about the starfish. Starfish जो है ये क्या करती है, शेल्स को तोड़ लेती है, जो भी इंसेक्ट होते हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल होता है, और अपने स्टमक को, यहाँ इसका स्टमक है, अपने स्टमक को बाहर निकाल देती है माउथ से, और बाहर निकाल के उस सब्सटेंस को लेके अपने माउथ को वापस अंदर लेके चली जाती है. तो ये एक मोड है फूड इनटेक का. ठीक है, ये आप सारी चीजें डिटेल में बाद में पढ़ोगे. देन कम्स डाइजेशन इन ह्यूमंस.
ह्यूमंस में डाइजेशन आपको पता है happens in the digestive system. Digestive system is a system which contains so many different organs like liver, stomach, intestine, etc. ये सारे organs मिलके organ system बनाते हैं जिसे हम कहते हैं digestive system. So you can see also this is known as alimentary canal. You see in the diagram 2.2, this whole pipe is an alimentary canal. Okay, this pipe starts from the mouth and ends in the anus. Clear? यहाँ से शुरू होता है और एनस में खत्म होता है, और ये पूरा जो पाइप है, कनाल है, इसे हम डाइजेस्टिव कनाल भी कहते हैं या एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं. ठीक है, ये शुरू होता है आपके माउथ से. यू कैन सी द डायग्राम. First comes the buccal cavity or the mouth, then comes the esophagus. Okay, esophagus के नीचे क्या है? Stomach. ये है आपका stomach. Then this is the large intestine and this is the small intestine. और बीच में ये जो है, ये क्या है? Pancreas और liver. ये secreting organs हैं जो कि enzymes को secrete करते हैं. Glands हैं basically. ठीक है, gall bladder etc. तो ये सारी चीजें मिलके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है. हम एक एक करके इनके फंक्शंस को समझेंगे. फर्स्ट कम्स बक्कल कैविटी. सबसे पहले माउथ और बक्कल कैविटी. देन कम्स ओसोफेगस और फूड पाइप. ओके, फूड, दिस इज द पाइप ऑफ द फूड. बक्कल कैविटी इज कनेक्टेड विद द स्टमक थ्रू दिस पाइप. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज फूड पाइप. Fourth is small intestine, then is large intestine, then is rectum and anus. Okay, and whole this tract or canal is known as alimentary canal. Okay, you remember this name because this is important. Then you will study about different glands. आपने देखा कि ये सारे जो पाथ हैं वो तो हमने एलिमेंट्री कनाल के देखे पार्ट्स अलग अलग, और इसके अलावा विल स्टडी अबाउट डिफरेंट ग्लैंड्स. ग्लैंड क्या करते हैं? ये कुछ सिक्रेटिव डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं. ओके, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड बनाने में मदद करता है. लाइक सलाइवरी ग्लैंड जो कि आपके माउथ में है, जिससे सलाइवा आता है, जिसे आप हिंदी में लार भी कहते हैं. देन लिवर, pancreas. We'll study about all these things. Okay. Next, coming to the mouth. Mouth is the first part which starts from which is the opening of the alimentary canal, which is one opening of the alimentary canal. Okay. So mouth contains the tooth or teeth and also contains tongue. So when along with teeth and tongue we want to or we chew the food, we make it into simpler parts. हम जो भी खाना लेते हैं हम उसे सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं. हम इसे तोड़ के टुकड़े करके बॉडी के अंदर लेंगे, बिकॉज वी नॉट एबल टू टेक होल पोटैटो इनसाइड. हम पूरा एक आलू नहीं ले सकते या टमाटर. वी हैव टू च्यू इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स. हमें इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, च्यू करना है, फिर हम इसे अंदर लेते हैं. सो ऑल दिस हैपेंस इन द माउथ और द बक्कल cavity. Okay, this was page number 12. Then come into page number 13. You see, you must have also seen your own teeth. You have seen like there are two sets of teeth. First is milk and other is permanent teeth. Milk teeth is the first set of the teeth which comes earlier in the life and which gets broken down, fall, and then comes the permanent teeth. पहले मिल्क के दांत आते हैं, देन ये टूट के अलग होते हैं, गिर जाते हैं, एंड देन कम्स द परमानेंट टीथ सेट. फाइन, दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ योर टीथ. ओके, देयर आर आल्सो 4 टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ टीथ. यू कैन सी फर्स्ट इज इंसिजर. इंसिजर 4 तरह के दांत अलग अलग हमारे मुंह में होते हैं. पहला है इंसिजर. इंसिजर जो है आगे के 4 दांतों को कहा जाता है. देन कम्स कैनाइन. कैनाइन जो है चीरने या फाड़ने के काम आता है. कैनाइन जो है शार्प दांत है, शार्प होता है, और ये 2 होता है. देन कम्स प्री मोलर. ये भी 4 होते हैं. एंड लास्टली इज मोलर, 6 होता है. सो मोलर एंड प्री मोलर का काम बेसिकली च्यू करने का है. इनका बेस बड़ा होता है, आसानी से च्यू करते हैं. और कैनाइन और इंसिजर का फाड़ने या पकड़ने का है. ओके, सो ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ टीथ कैन बी फाउंड इन ह्यूमन माउथ. Second thing comes about the saliva. Saliva is basically an enzyme. Saliva जो होता है, saliva के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं amylase. ये एंजाइम क्या करता है? खाने को
तोड़ता है और सॉफ्ट बनाता है, और जब ये सॉफ्ट बनता है तो आसानी से फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक पहुंचता है. इफ दिस इज हार्ड देन इट विल नॉट बी able to pass through the food pipe, so we have to make it slippery, we have to make it soft. Okay, ये काम होता है आपके माउथ में. In this activity 2.3 you can see page number, which page number is this? 14, right? Page number 14 you see activity 2.3. In this activity basically what you have to do, you have to take two test tubes. ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक ये है दूसरा बी. इन टेस्ट ट्यूब में पहले वाले में हमने क्या किया, सिर्फ बॉइल्ड राइस को डाला. बॉइल्ड राइस में आपको पता है राइस में क्या होता है, हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट होता है ना. तो कार्बोहाइड्रेट को हमने डाला, उसके ऊपर वाटर डाला और कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दी. दूसरे में हमने क्या डाला, बॉइल्ड राइस को च्यू करके डाला और उसके साथ पानी डाला और आयोडीन डाला. अगर मैं आपसे पूछूं कि किसमें या किस टेस्ट ट्यूब का कलर पर्पल. So when we'll take these two test tubes, in first test tube if we'll take boiled rice, and in second test tube if we'll take boiled rice which is already chewed, we'll find that the test tube A will contain blue color if we'll put iodine solution in that. अगर ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे कि पहली टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सोल्यूशन डालने की वजह से वो ब्लू हो गया. ऐसा क्यों? क्योंकि जो खाने में हम जो च्यू करते हैं, बिना च्यू किया हुआ खाना अगर हम उसमें डालते हैं, लाइक द बॉइल्ड राइस, सिंपली बॉइल्ड राइस हमने पुट किया, तो हमने देखा हुआ है कि बॉइल्ड राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट पे ऊपर, या हम कह सकते हैं स्टार्च. स्टार्च एक काइंड है, एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का. तो जब उसमें हम आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है. पर दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो कि हमने बॉइल करके च्यू करके डाला, उसमें हमारा सलाइवा भी होता है, क्योंकि माउथ में सलाइवा है, एंड जब सलाइवा मिक्स होता है राइस के साथ तो वो राइस को ब्रेक डाउन करता है. ऐसे में वो जो शुगर राइस में है वो शुगर टूट के माल्टोज बनती है, जो कि उसका सिंपलर फॉर्म है. और जब ऐसा होता है तो वो ब्लू कलर नहीं देता, क्योंकि हमें पता है कि ब्लू कलर सिर्फ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट देते हैं, और इसके केस में कार्बोहाइड्रेट टूट गया सिंपल फॉर्म्स में. तो इस वजह से इस टेस्ट ट्यूब को हमें ब्लू ये नहीं मिली, ब्लैक ब्लू कलर लाइट दिखा या नहीं दिखा. ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस एंड दिस वाज द बेसिकली explanation of activity 2.3. You can do it at your home if you want, otherwise we'll do it in the class when the school reopens. Clear? Now moving next is comes tongue. After we studied teeth comes tongue. Tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of the फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. ये आपके बकल कैविटी के बैक फ्लोर से कनेक्टेड मस्कुलर ऑर्गन होता है. इसमें हड्डी नहीं होती, इसमें मसल्स होते हैं, और ये आपको फूड को च्यू करने में और अच्छे से सलाइवा के मिलने के लिए इसमें मदद करता है. When the tongue is there, whatever you chew is finely or softly mixes up with the saliva whatever comes in your mouth, and also it helps in the speaking. आपकी जो भी communication है, speaking है, ये उसमें मदद करता है. Okay, coming to page number 15, you see it's a diagram, figure number 2.6. It's a diagram of tongue. You see there are different regions which are shown here. अलग अलग regions दिखाए गए हैं, और ये अलग अलग region अलग अलग taste को sense करते हैं. Okay, I can show you the picture. You see this? This picture shows different region in which different taste comes, different taste sense comes, like sweet or salty. Salty taste comes on the upper and the tip of the tongue. Then sour comes at the side. Sweet is the middle portion and bitter is the back portion. Umami is basically sweet and bitter mixed taste. Okay, so all these tastes come in the tongue whenever you eat your food, and that is why tongue is important, because this senses the taste of the food. Okay, now coming next is your food pipe or esophagus. Also one thing I have to teach you, which is tooth decay or sweet. What is tooth decay? दांतों का गलना क्या होता है? दांत का गलना बेसिकली होता है जब आप खाना खाते हैं, and if you don't wash it properly, if you're not cleaning it properly, what happens? Some amount of food gets stuck between the teeth. आपके दांतों के बीच में कुछ अमाउंट खाने का फंस जाता है और वो वहीं रहता है. जब वो वहीं रहता है तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, गलने लगता है,
और बैक्टीरिया उस पर एक्ट करने लगते हैं। जब बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं तो वो एसिड रिलीज करते हैं, और यही खाना ये जो एसिड रिलीज हुआ बैक्टीरिया की वजह से, इस बचे हुए खाने की वजह से, तो क्या होता है, ये एसिड दांतों को गलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसिड जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और वो गला सकते हैं किसी चीज को। अगर ऐसा हुआ तो दांत डिके होते हैं, गलते हैं, और इस वजह से जल्दी गिर भी सकते हैं या दांतों में दर्द भी होता है। सो वी हैव टू टेक केयर दैट whenever we are eating something we have to clean our teeth afterwards very efficiently, okay? Otherwise what will happen, tooth decay में टेक प्लेस। ऐसा हो सकता है कि खाना बचा रह जाए और वो खाना जब बैक्टीरिया उस पर वर्क करते हैं तो वो टूटता है। जब ऐसा होता है तो एसिड बैक्टीरिया से रिलीज होता है जो कि आपके दांतों को भी नुकसान पहुंचाता है, ओके? तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। देन कम्स ओसोफेगस। ओसोफेगस बेसिकली इज योर food pipe, okay? One more thing, just back to the diagram, figure number 2.2 you see, इस डायग्राम में हमने देखा कि फूड पाइप है। This pipe which starts from the mouth and ends up to the anus is basically 9 meters in length. इसकी लेंथ कितनी होती है? अप्रॉक्स 9 मीटर। आप देख सकते हैं कि आपका डाइजेस्टिव कनाल कितना लंबा है। अगर 9 मीटर इतनी लंबी लेंथ अगर मैं आपको बोलूं कि आप नाप के आओ तो आप देखोगे दिस इज वेरी मच, ये काफी ज्यादा होता है। तो इतना लंबा तो ह्यूमन भी नहीं है। हमारी हाइट, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई हाइट इज जस्ट 5.3 मीटर, 5.3 5 foot 3 inches. So what happens or how this whole digestive tract or digestive system gets fitted inside the body? ये जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपके बॉडी में किस तरह से फिट होता है जब ये 9 मीटर का है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट होता है, मतलब ये स्क्वीज्ड फॉर्म में होता है, कॉम्पैक्ट होता है और कॉम्पैक्ट होके फिट होता है बॉडी के अंदर, तभी ये आ सकता है, अदरवाइज ये नहीं आएगा। एक और चीज, यू कैन सी दिस ओपनिंग इज एक्चुअली योर विंड पाइप। ये क्या है? आपका विंड पाइप है, ट्रैकिया है, और यहाँ से यहाँ लंग्स होते हैं जहाँ पे हवा जाती है, ओके? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लीन दिस अप। यहाँ पे विंड पाइप है जहाँ पे लंग्स होते हैं और यहाँ पे हवा जाती है। तो कभी कभार क्या होता है, जब आप खाते खाते बातें करते हैं या हंसते हैं तो समटाइम्स दिस फूड कैन गेट इनटू द विंड पाइप। ये जो फूड है ये विंड पाइप में जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आपको खांसी आती है, क्योंकि ये विंड पाइप है, यहाँ पे खाना नहीं जाना चाहिए। खाना कहाँ जाना चाहिए? फूड पाइप में, इस पाइप में। ऐसे केस में खांसी आती है ताकि ये जो खाना यहाँ गया है ये वापस से निकल के फूड पाइप में चला जाए। ये इसलिए होता है ताकि लंग्स में खाना ना जाए और किसी तरह का डिके प्रोड्यूस ना हो। ऑल्सो हियर वन फ्लैप इज देयर, यहाँ पे एक फ्लैप होता है विच प्रिवेंट्स एंट्रिंग ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, जो खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। कभी कभी वो फ्लैप खुला रह जाता है हंसने की वजह से या बात करने की वजह से, जिस वजह से खाना यहाँ जा सकता है, ओके? About this trachea and windpipe we'll study in the further chapters, but now just look at this figure and try to memorize or try to inculcate how different organs are there in the body। कैसे अलग अलग organs अलग अलग एरिया में प्रेजेंट है। सबसे ऊपर आपके गले के पास विंड पाइप है और उसके पीछे तरफ ये फूड पाइप है, ओके? इस चीज का आपको ख्याल रखना है। फाइन, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑसोफेगस। Osophagus is basically a food pipe which passes the food from the mouth up to the stomach। यहाँ पे जो फूड है माउथ से फूड होता हुआ, ऑसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाता है? आपके स्टमक में जाता है, ओके? You can see food is pushed down by movement of the walls of the food pipe। जो food pipe होती हैं इनमें movement होता है food pipe की wall में, और ये इस तरह से खाने को आगे बढ़ाते हुए स्टमक में भेज देते हैं, ठीक है? जब कभी कभार आपका खाना इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक देन वॉमिटिंग हैपेंस। कभी कभी जब स्टमक में खाना एक्सेप्ट नहीं होता ओवर ईटिंग की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, बीमारी की वजह से, तो एलिमेंट्री कनाल से होते हुए खाना बाहर की तरफ पुश हो जाता है, माउथ के तरफ। तो उस केस में क्या होता है? वॉमिटिंग हो जाती है, ओके? सो बेसिकली ऑसोफेगस इज योर फूड पाइप विच passes the food from the mouth up to the stomach. Now in the next class we'll study about stomach and
other digestive parts. Hopefully that you understand. If you're having any difficulty, you can ask me. Thank you so much, class. Have a nice day.